सो आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द HGL and TEL. We have already discussed the HGL for the uniform diameter of the pipe, HGL and TL both for the uniform diameter of the pipe, and HGL and TL for the different diameters of the pipe. So first problem we will take of the same uniform diameter of the pipe. तो वो देखेंगे कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी नो दैट हाउ वी विल ड्रा द HGL and TEL that we have discussed in our previous lectures. But practically, if the application is given to you, if the problem is given to you, then how you will calculate the HGL and TEL, how you will calculate the losses, what we have to do, and all these things we will discuss in the problem. So solving the problem is very important, you can say. प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, सो प्रॉपर यू कैन से व्हाट इज द कंसेप्ट विच इज गिवन while discussing the HGL and TL, you cannot understand it well. So problems are very important to know the real applications of what we have discussed. You understand? तो प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आपने उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने लेक्चर्स के डिस्कशंस में, जो भी लेक्चर्स आपको डिस्कस किया जाता है, कंसेप्ट किया जाता है, उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं. यू अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. So problem is draw HGL and total energy line, that is TEL. So what is given in the problem? We have a horizontal pipeline. The diameter of the pipe is given 20 centimeter, right? So you can say this is a single pipe having the uniform diameter. Isme no other pipe is connected of the different diameter, right? So only we have a pipeline which is having a uniform diameter, and this diameter is given as 20 centimeter. Length of the pipeline, that is 50 meter. You understand? So one end of the pipe is connected to the tank. Pipe का एक end जो है, that is connected with the reservoir or tank. Velocity of the fluid flowing in the pipe. Velocity of the water, you can say, or fluid, you can say, which is flowing in the pipe, that is also given 2.734 meter per seconds. The other end of the pipe is connected to atmosphere. So the other end of the pipe, you can say, that is a free end, जहाँ पे there is no reservoir, no tank, nothing is there. So that is, you can say, that is free to the atmosphere. The height of the water in the tank, head जहाँ पे आपको दिया है, the height of the water in the tank from the center line of the pipe, we will measure the head, that is given as 4 meter. You understand? So head आपको दिया है, height क्या है, that represents the head. The height of the water in the tank, this is 4 meter above the center of the pipe. ये जो center line है जहाँ से we will measure the head of the pipe, or you can say we will measure the height of the pipe, that is 4 meter. That is also given. Coefficient of friction, because this is a uniform pipe, so we are having only a simple one coefficient of friction there, that is F is equal to 0.009, and consider all minor losses, and we have to consider minor losses also here. So this is the problem which is given. तो जो आपको गिवन दिया गया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ द पाइप लेंथ दिया है. सो लेट अस स्टार्ट द HGL एंड TEL. फर्स्ट वी विल स्टार्ट द TEL. यू अंडरस्टैंड? हमें टोटल एनर्जी लाइन, वी विल स्टार्ट द टोटल एनर्जी लाइन. दैट हाउ वी विल स्टार्ट इट. तो यहां पे देखिए, ये आपका जहां पे एक लॉस होगा, बिकॉज द पाइप इज कनेक्टेड टू द टैंक, तो इस लॉस को हम क्या कहते हैं? दिस लॉस इज द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड?
So loss of head due to the entrance of the pipe that we will calculate, and this is given as HI. HI, this is loss of head due to entrance of pipe. तो लॉस ऑफ हेड निकालेंगे हम, क्योंकि ये लॉस हो गया यहां पे. सो दिस लॉस एच आई, what is its formula? This is 0.5 v square upon 2g, because he has given that we have to consider all the minor losses. So first loss we will see here, that is the first loss is that is on the entrance of the pipe. And if we will calculate the value of this loss, that is 0.5. What is your B? Velocity of the pipe is given, that is 2.734. 2.734 whole square upon B square upon 2G, 2 into 9.1. So this is equal to how much? Calculate. So let us calculate this one. This is a 0.5 into 2. So this is equal to 0.19 meter, right? तो जी आपका आ गया, this is 0.19 meter. So loss of head due to entrance in the pipe, this we have calculated. So friction loss we will calculate. Friction loss भी calculate कर लेते हैं, that is generated by HF. And this is equal to 4 into F into L into V square upon 2G and D. This is, put the values of this, that is 4 into F into L, V square upon 2G. So put the values. So what is the values here? That is 4 into F क्या है 0.0, so F is 0.009 into what is L? 50 meter. This is given B square. This is given as 2.734 whole square upon 2. G क्या है 9.81 and D that is 20 centimeter. Convert this into meter, that is 0.2 meter. इसे convert कर दे मीटर में, and this is 0.2 meter. You understand? So find the values. इसकी value आप find out करें. So what is the value of this? So this is equal to 3.42 meter. So this is 3.42 meter. You understand? So this is the head loss due to friction. That is you can say major loss, right? तो ये loss हम यहाँ पे नोट कर लें.
एक तो आपका एंट्रेंस में लॉस हुआ एच आई, दिस इज इक्वल टू 0.19 मीटर, and second one is HF, this is equal to 3.42 मीटर। तो जहां पे तो आपको दो लॉस ही मिलेंगे, ओनली यू आर हैविंग टू लॉसेस, वन इज द माइनर लॉस, दिस इज इक्वल टू एच आई, दिस वन, एंड दिस इज योर फ्रिक्शन लॉस, यू अंडरस्टैंड। सो लेट अस ड्रा द सो इसको मिटा दीजिए अब। अब आइए ये पहले टोटल एनर्जी लाइन, वी विल ड्रा फर्स्ट टोटल एनर्जी line which is called as TEL, right? So what you will do, this is the tank here, we will consider 3 points, point A, point B and point C. Point A is on the top of the surface of the water or the fluid which is in the tank. This is your point A. We will take one point here on the top of surface of the water in the tank. Second point B, that is in the entrance of the pipe, that is on the center line of the pipe at this point, because we are measuring the head from the center line of the pipe. So one point is at the entrance of the pipe, B, point B, and the third point we will take at the free end of the pipe, that is at point C. You understand? So what we will do, we will just calculate the energies at point A, at point B and at point C, right? हम क्या करेंगे, point A के ऊपर, point B के ऊपर और point C के ऊपर we will calculate the energy. You understand? तो एनर्जीज आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे ये जो रेफरेंस लाइन है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम दैट द पाइप इज अबव द ग्राउंड, हाउ मच अबव द ग्राउंड, तो पोटेंशियल हेड, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक द रेफरेंस लाइन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। यू अंडरस्टैंड? रेफरेंस लाइन को हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, दैट वी विल कंसिडर द रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन लिख लीजिए अब। रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ऑफ पाइप, दैट इज द रेफरेंस लाइन, जहां से हम रेफरेंस लाइन कंसिडर करेंगे। यू अंडरस्टैंड? नाउ अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट ए, बिकॉज हमें एनर्जी एट पॉइंट ए एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या होगा एनर्जी एट ए, सो एनर्जी एट ए दैट इज गिवन बाय द, सो फर्स्ट आ गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये कैलकुलेट कर लें आप, टोटल एनर्जी एट ए, व्हाट इज दिस, total energy at A, that is P upon rho A plus Z plus B square upon 2G, right? यही आएगी टोटल एनर्जी एट ए, P upon rho A plus Z plus, sorry, rho g, that is P upon rho g plus Z plus B square upon 2G, means the sum of the
sum of the pressure head plus velocity head and plus you can say datum head. So sum of that datum head, pressure head, datum head or potential head you can say, and the velocity head, that will give the total energy at, ये आपकी इक्वेशन क्या है, टोटल एनर्जी की इक्वेशन है. तो हमें कहाँ पे लेनी है, टोटल एनर्जी एट ए. अब देखिए, अब हमें ए के ऊपर वी हैव टू कैलकुलेट. सो एट ए व्हाट, वेयर इज द पॉइंट एट ए, दैट इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, राइट, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. और इसके ऊपर जो प्रेशर है दैट इज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दैट वी विल कंसिडर, क्या होगा यहाँ पे, ये पी ए लिख ले, पी ए. सो दैट इज पी ए, क्या होगा यहाँ पे, दैट इज पी ए, दिस इज इक्वल टू 0. पहला बात. डेटम हेड यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हेड, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन एट दिस पॉइंट, दिस सेंटर लाइन ऑफ द पाइप. और जहां से लेके जहां तक इसका हाइट कितना है, हाइट इज गिवन दैट इज 4 मीटर, दैट इज हेड इज गिवन 4 मीटर एंड दिस इज द डेटम हेड. तो आप कह सकते हैं कि जहां पे जो पोटेंशियल हेड होगा वो कितना आ गया, 4 मीटर. यू अंडरस्टैंड. एंड वेलोसिटी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दैट बी इट इज कंसिडर्ड एज ए नेग्लिजिबल एंड वी अज्यूम दैट ये बी आपका क्या होगा जहां पे, एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप फ्रॉम हियर. So at the free surface of the water, you can say velocity is taken as 0. तो ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे यहाँ पे. तो पी ए क्या है 0, जी आपका 0 आ जाएगा, प्लस जेड क्या है दैट इज 8 और जे भी क्या है 0. तो एट पॉइंट ए आपका आ गया 8 मीटर. यू अंडरस्टैंड. टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर, राइट. इसी तरीके से आप सेकंड टोटल एनर्जी एट बी कैलकुलेट करें. सो सेकंड इज टोटल एनर्जी एट बी. तो टोटल एनर्जी एट बी कितना होगा, सो टोटल एनर्जी एट बी होगा, क्योंकि जहां से लेके जहां तक कितना था 4 मीटर था, बट एट द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप देयर इज ए head loss due to the center of the pipe and that is given by 0.19 meter. So you can say if अगर h आपका total head है from here to here that is 4 meter minus hi, I क्या है, loss of head due to the entrance of pipe. तो ये आपका होगा total energy at point B and this is equal to 4 minus 0.19 meter and this is equal to 3.81 meter, right? So write down, this is equal to 3.81 meter. तो ये आपका आ गया 3.81 meter. So this is the total energy at B. B के ऊपर हमें जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो जहाँ, क्योंकि जहाँ से ही आप देख लीजिए, जहाँ सेंटर लाइन से हमारा टोटल हेड है 4, एंट्रेंस में लॉस हुआ 0.19, तो नेचुरली वो जो हेड लॉस होगा वो जहाँ भी आएगा वो हमें बताएंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. सो टोटल एनर्जी एट बी यू हैव कैलकुलेटेड. लाइकवाइज थर्ड में टोटल एनर्जी एट सी. तो टोटल एनर्जी एट सी क्या होगा, सेम इक्वेशन, पी सी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2e, राइट. टोटल एनर्जी एट सी, दिस इज पी सी आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट प्रेशर एट दिस पॉइंट सी. पी सी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g. ये हो गया टोटल एनर्जी एट सी. सो द वाटर इज फ्लोइंग, ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखना है. व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग इट इज गिवन एज दैट द अदर एंड ऑफ द पाइप that is connected to the free surface of the water.
सो इट मीन्स दैट जो प्रेशर सी के ऊपर होगा वो भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और पीसी का प्रेशर आपका जीरो होगा। यू अंडरस्टैंड, पीसी आपका जीरो होगा। जो आपका जेड सी है, तो जेड सी भी क्या होगा, बिकॉज दिस पॉइंट सी, दिस लाइज ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, दैट इज जेड सी। ये आपका सेंटर लाइन ऑफ द पाइप के ऊपर ये पॉइंट है, तो जेड सी भी आपका जीरो होगा। यू अंडरस्टैंड, तो ये दोनों सारी चीजें जीरो हो जाएगी, जे भी आपका जीरो हो जाएगा, जे भी, तो जे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2g। यू अंडरस्टैंड, तो बी स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां पे, तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, बी स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज इक्वल टू, what is your b? b is given as 2.734 whole square upon 2 into 9.81, right? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, so this value is 0.38. तो टोटल एनर्जी एट सी आएगी 0.38, राइट। तो हमने टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी एंड टोटल एनर्जी एट सी वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। सो write down this thing. This is the tank. So we got this एनर्जी एट ए कितना आया, एनर्जी ये हमने निकाला, इधर लिख लेते हैं एनर्जी एट ए, दिस इज गिवन एज 8 मीटर। Energy at B this is a 3.81 meter, and energy at C energy at C, this is equal to 0.38 meter, right? You understand? So energy at A 8 meter, it means, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा that the center line total energy line बिल्कुल coincide at the free surface of the water, क्योंकि ये 8 मीटर, sorry, energy at A, that is, sorry, this is not 8, this is 4 meter, head is 4 meter, head is given as 4 meter, so this is 0, jet कितना है 4 है, head is given as 4 meter, तो energy at A, that is 4 meter, that is not 8 meter, that is right, you understand this? So this is 4 meter, this is not 8 meter. You please correct this thing. Some error mistake tha. 4 meter I have shown here, but instead of 4 I have written here 8 meter. So that, right? So energy at A, that is 4 meter. Energy at B, this is the kitna hai aapka 3.81 meter, and energy at C, this is 0.38 meter. तो हमारी जो लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन, आई एम टेलिंग दैट इज कोइंसाइडिंग with the free surface of the water, say
ये जो आपका है, दिस पॉइंट इज डी, मैं ले लेता हूं, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, बिकॉज द line will start from this point. Now come to this energy at B. This is 3.81 meter. So it means from center line to this is 3.18 meter. और अगर टॉप से लेंगे तो हमारा HI कितना है, head loss at the entrance of the pipe. This is 0.19 meter. So आप क्या करें, अब हमारी टोटल एनर्जी एट बी है 3.18 मीटर. तो अगर ये पॉइंट मैं जहां पे शो कर लेता हूं आपको, दिस पॉइंट सी आई विल टेक, और ये इसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना होना चाहिए, टॉप से 0.19 मीटर कम होना चाहिए और नीचे से 3.18 मीटर होना चाहिए. So this is your 0.19 meter. 0.19 meter. So what we will do, from D, take a distance downward direction 0.19 meter. अगर जहां से देखें तो definitely this will come as point C, 3.81 meter. You understand? तो जहां से ये आपके पॉइंट मिला. Now you come to the outlet of this. So energy is given as 0.38 meter. This is the center line. And at the point C, the energy is given as 0.38 meter. So I will say from the center line, ये आपका J point आ गया. आप इसको क्या करें, E कर लें. Right? So this point E is 0.318 meter. C already I have taken, ये रख लीजिए आप. D, this point you will take E. ये आप ये कर लीजिए. इस पॉइंट को हम F लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि C हमने ऑलरेडी लिया था, तो ये C. तो ये आपका जो, बिकॉज ये आपका काइनेटिक हेड है, यहाँ पे क्या है, V²/2E क्या है, काइनेटिक हेड है. यहाँ से सेंटर लाइन से तो ऊपर ले लीजिए, कितना है आपका, V²/2E. यू अंडरस्टैंड, V²/2G from this point. So let us draw the right, जहां ये सारी चीजें आपको समझ आ गई. D is the point जहां से लाइन आपकी स्टार्ट होगी, मीन्स ये इस तरीके से इसको आप ज्वाइन कर ले, D to E, and then join this point F, right? So ये ज्वाइन कर ले. So this line is your total energy line. You understand here? अच्छा, आप one thing you are confused here, क्योंकि यहां पे देखिए आउटलेट के ऊपर आपका जो एनर्जी है वो कितना है, V²/2G, और जो इनलेट के ऊपर एनर्जी है, इनलेट जहां पे, वो कितना है, जहां पे आपका 3.81 मीटर. नेचुरली जो इनलेट लाइन है इसको आउटलेट से मिलाइए, एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन. बट जहां पे हमने एक निकाला था फ्रिक्शन मेजर लॉस के कारण, आई एम नॉट टेकिंग हियर मेजर लॉस, बट ऑटोमेटिकली जहां पे मेजर लॉस के बराबर आ जाएगा. देखिए वो था आई थिंक 3.42 लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो अगर जहां पे देखें, ये जहां से लेके जहां तक कितना है, 0.38 मीटर है, और जहां से लेके जहां तक कितना है, 0.19 मीटर. सो 0.38 मीटर प्लस 0.19 मीटर कितना हो गया, 0.57 मीटर लाइक दिस. एंड द जो फ्रिक्शन लॉस था that we have calculated, this is almost I think 0.32 like this.
तो तब भी आप देखिएगा टोटल हेड 4 मीटर बनेगा, यू अंडरस्टैंड। बट इन दिस केस दिस इज a uniform diameter of the pipe. I have taken the energy at point A, total energy at point A, total energy at point B and total energy at point C, because there are no other losses here. जहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, तो हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन होगी, टोटल एनर्जी लाइन आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी लाइन TEL, जिसे आप कहते हैं दैट इज D to E and E to F and E to F, right? Or you can say DEF is the total energy line. You understand this? So DEF, this is the total energy line. You understand this? Now, जहां तक चीजें क्लियर हैं, नाउ वी हैव टू ड्रा द HGL. देखिए अब हमें क्या ड्रा करना है, HGL. वी हैव टू ड्रा द HGL. जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी विल ड्रा इट. जस्ट अंडरस्टैंड. अब HGL जो है, जिसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं, दिस इज द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वो किसका सम है? दैट इज द प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? आर यू कैन से दिस इज अ फिजियोमेट्रिक हेड. जो फिजियोमेट्रिक हेड होगा उससे हम कंसिडर करते हैं, तो उसका फिजियोमीटर हेड क्या होगा HGL के केस में? आपका P/ρg प्लस जेड, यही लेंगे हम. सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग द काइनेटिक हेड हियर. हम जहां पे इन दिस केस हम काइनेटिक हेड को क्या करते हैं, कंसिडरिंग, नॉट कंसिडरिंग काइनेटिक हेड. तो काइनेटिक हेड जो आपका है वो क्या है आपका V²/2g, because the velocity is constant at point B and point C. V²/2g. अगर मैं V²/2g को माइनस कर लूं टोटल एनर्जी लाइन से, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन में क्या होगा आपका V²/2g ये होगा. अगर मैं V²/2g दैट इज द काइनेटिक हेड, अगर मैं इसको क्या करूं माइनस कर लूं, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं टोटल एनर्जी लाइन से, सब्ट्रैक्टिंग V²/2g फ्रॉम TEL, टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हेड होगा एट पॉइंट C, ले लेंगे हम टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट C. तो अगर मैं इससे माइनस कर लूं तो क्या होगा हमारा, ये P/ρg प्लस जेड आएगा. तो इसका मतलब ये है कि C के ऊपर हमारा काइनेटिक एनर्जी हेड ये था CF, और अगर मैं CF को माइनस करता हूं यहां पे, तो इट मीन्स दैट ये जो हमारी HGL की लाइन होगी ये कहां से स्टार्ट होगी, एट पॉइंट C से स्टार्ट होगी. बिकॉज काइनेटिक हेड जब हमने लिया तो हमारा जो टोटल एनर्जी लाइन थी दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस, जहां से D से E और E से जहां पे F तक. बट नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग द काइनेटिक हेड हियर. सो काइनेटिक हेड इफ आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट C, सो इट मीन्स दैट द जो C के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें C के ऊपर किसकी वैल्यू मिलेगी, P/ρg प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी. यू अंडरस्टैंड, वेयर जेड इज 0 एंड P/ρg प्लस जेड, व्हाट इज दिस, दिस इज HGL. वो क्या है HGL. यू अंडरस्टैंड दिस. तो ये मैंने यहां पे लिखा है, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वन. यू अंडरस्टैंड. सो नाउ so point C, it means that the total energy line that will start from the point C. You understand? तो पॉइंट C से हम जब आउटलेट के ऊपर हमारा कहां पे पॉइंट आएगा TEL HGL का, दिस एट पॉइंट C, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग V²/2e एट दिस पॉइंट C.
तो ये सी के ऊपर आएगा। तो जहां पे क्या है, दिस इज अ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइप, यू अंडरस्टैंड। तो जो लॉसेस जहां पे होंगे वो लॉसेस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यू अंडरस्टैंड दिस। तो जहां पे क्या करेंगे, हम एक ग्रेजुअल लाइन आप ड्रा कर लीजिए पैरेलल, तो पैरेलल लाइन आप ड्रा करें, सो दैट विल गिव द HGL। ये समझ आ गया। अब देखिए जहां से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम इसके, तो ये पैरेलल लाइन जहां से ड्रा करें हम, आप यहां से कर लीजिए, राइट। तो ये जो आपकी पैरेलल लाइन होगी, ये आपका, सो दिस इज योर HGL। शेष समझ आ गया आपको। ये आपका क्या है, दिस इज योर HGL, यू अंडरस्टैंड दिस। HGL जिस सेंटर लाइन के साथ क्यों मिला, बिकॉज एट पॉइंट C वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C था 0.38 मीटर, दैट इज B²/2G। दिस इज द काइनेटिक हेड जो कि एट पॉइंट C के ऊपर, बाकी तो हेड आपके क्या थे, जीरो हो गए, यू अंडरस्टैंड। तो वो पॉइंट F जो था, CF आप कह सकते हैं, जो C और F पॉइंट था फ्रॉम C टू F, ये क्या था, B²/2G, दैट इज इसके बराबर 0.38 मीटर, राइट। और जब हमें व्हेन वी हैव टू ड्रा द HGL, व्हाट वी विल डू, बिकॉज HGL क्या है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दैट इज द सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, you understand, pressure head plus potential head. So it means that we are subtracting the kinetic head from the total energy line. जो total energy line होगा वहां से आप kinetic head को आप क्या करें, माइनस करें, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। चाहे आप जहां से this point you will subtract B²/2G because B is constant throughout here, जहां से आप subtract कर ले, तो जब जहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉइंट ये आएगा, सपोज ये DEFG कह लेते हैं, दिस पॉइंट इज G। तो जहां से भी आप पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो दैट विल मीट एट द सेंटर ऑफ दिस। रीजन इज दैट एट पॉइंट C वी आर सब्ट्रैक्टिंग द, व्हाट वी आर सब्ट्रैक्टिंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द वेलोसिटी हेड हियर। तो जहां से B²/2G माइनस करें आपको पॉइंट मिलेगा, एंड जो इसका पॉइंट होगा एट द आउटलेट वो कहां पे होगा, at the center line of the pipe, and then you join this you join this line, जहां से G से C को आप ज्वाइन करें, so this line is parallel to the TEL, you understand। तो ये आपका हो गया कि अगर यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप है, then how you will draw the HGL and TEL। अब एक प्रॉब्लम और करेंगे जिसमें डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द पाइप होगा, बट प्रॉब्लम लंबी होगी, उसकी कुछ वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट किया है मैंने, तो उसकी वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लेंगे, फार्मूला लगा के वैल्यू को रख लेंगे, सो दैट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल टेक अप फॉर द sudden contraction or sudden expansion when the different diameters are there, or you can say when the pipe is having the different diameters, one small pipe, then bigger pipe, then small pipe, like this। So at that time, जैसे मैंने आपको बताया था आपका HGL एंड TEL, दैट इज इंटायरली जो उसका प्रोसीजर है, मेथड है, वो जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग अब हमें प्रैक्टिकली अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हाउ वी विल सॉल्व, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। So this is the another question. So what is given in the question here, that a pipeline that is 40 meter in length, you understand, and one end of the pipe is connected with the tank and the other end of the pipe that is free to the atmosphere. Now the pipeline which is given here, that is total 40 meter. So from the entrance of the tank
the length of the pipe is 25 meter. This is given in the question. And the diameter of the pipe, that is 0.15 meter. You understand? So D1, you can say D1 is the diameter of the first smaller pipe, you can say, that is from the entrance of the tank up to this, that is given as 25 meter. And its diameter D1 means diameter of the first pipe. You can say this is first pipe, that is smaller pipe, and this is the bigger one. So D1 is given, that is 0.5 meter. Likewise, the other length, जो next length जो pipe की है, इसके बाद the bigger diameter of the pipe is connected, and its length, that is 15 meter. Naturally, total length of the pipe is 40 meter. So when this length, that is 25 meter, you subtract this and it becomes as 15 meter, and the diameter of the larger pipe, that is given as 30 meter. The other end of the pipe, that is free to the atmosphere. You understand? जो दूसरा end होगा pipe का, that is free to the atmosphere. Coefficient of friction, that is given as, because the coefficient of friction, when we will calculate the major losses here, so we require the coefficient of friction, and because when we use the formula for calculating the major losses, we require that. The coefficient of friction is given. The height of the tank from the center line of the pipe, that is given as 8 meter. So you can say that a head, that is from the center line of the pipe, that is given as 8 meter. You understand? Let us say this point is A, that at the free surface of the water, and take another point here at the exit of the pipe, at the exit of the pipe, right? Second point you will take at the exit of the pipe. राइट तो जे कोई पॉइंट ले लें आप, कोई भी पॉइंट ले लें आप, एफ ले लें, कुछ भी ले लें पॉइंट को, राइट? तो दैट इज एट द एग्जिट ऑफ द पाइप. क्या करें हम? बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करें. देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द हेड लॉसेस हियर. वेलोसिटी भी हमें गिवन नहीं है, द वेलोसिटी इज नॉट गिवन टू अस. So it means that the velocity, that also जो this pipe होगी, the pipe of the smaller diameter, its velocity is different, and the diameter of the bigger diameter of the pipe, there the velocity of the fluid is different. You understand? So you can say that the velocity at this smaller diameter of the pipe, this is B1, fluid is flowing with the velocity V1, and in the larger diameter of the pipe, the velocity is B2. You understand? So nothing is given to us. So we have to calculate all the things. So this problem becomes very lengthy, but we will shortcut हम इसको समझाने, because main हमारा motive है that we have to understand that how we will draw the HGL and TL in case of the sudden expansion of the pipe or sudden contraction of the pipe, or you can say when there is a different diameters of the pipes are connected to each other. In that case, how we will draw the TEL and HGL. You understand? तो क्या करें? फर्स्ट स्टेप क्या करें? अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट तो फर्स्ट स्टेप इसमें ये करेंगे हम. फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करने हैं, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है, जिसको हम सेक्शन 1.1 ले लेते हैं. ये मैं कहता हूँ ये सेक्शन 1.1 है, एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. And at this point, you can say at the end of the pipe,
That is the section T2. Apply Bernoulli's equation at 1 1 and 2 2. जो 1 1 है हमारा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, एंड 2 2 दैट इज एग्जिट ऑफ द वाटर इन द एटमॉस्फेयर, राइट? तो हम जहां पे बर्नौलीज इक्वेशन ले लें तो क्या होगा? ये P1 by rho g plus V1 by square by 2g, because B1 is the velocity at the section 1. We assume here P1 by rho g plus B1 square by 2g plus Z1 plus Z1. This is equal to P2 by rho g plus B2 square by 2g plus Z2 plus H. हेड लॉसेस, तो प्लस हेड लॉसेस. अब देखिए हेड लॉसेस इसमें कौन सा होगा? टोटल हेड लॉसेस, दैट इज माइनर लॉसेस एज वेल एज द मेजर लॉसेस. तो पहले हेड लॉस होगा जहां पे एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप, वो क्या होगा? HI प्लस. उसके बाद व्हेन द फ्लूइड इज विल फ्लो थ्रू इन द पाइप, तो जहां पे क्या होगा? मेजर लॉस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मेजर लॉस होगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय HF1, बिकॉज इन द फर्स्ट पाइप आई एम सेइंग, सपोज आई विल से दिस इज pipe number 1 and this is your pipe number 2. So I am denoting it major loss with HF1. Plus, now there is the sudden expansion here. At this point, there is the sudden expansion, and that is denoted by HE, right? That is the loss of head due to the sudden expansion, that is HE. Then again, the fluid will flow through this pipe number 2. So this loss, that is a major loss, this is equal to HF2, right? So these 4 losses will occur. These 4 losses will occur. You understand? अब आइए ये P1 by rho g. What is this? P1 by rho g, this is equal to 0. जैसे मैंने आपको बताया, because I am taking the free surface of the water. I am taking section 1 at the free surface of the water, and at the free surface of the water the pressure is 0. Velocity at the free surface of the water, at the free, this velocity is V1. ये जो velocity है, ये पाइप की velocity मैंने V1 लिखी है, but here the velocity is V, you can say, but मैंने section 1 दिया तो मैंने इसलिए इसको V1 लिख दिया. You understand? Otherwise this velocity and this velocity doesn't coincide with this, because here the velocity is 0 and here the velocity is V1. You understand? तो velocity जहां पे at the free surface of water जो velocity होगी वो क्या होगी? 0 होगी. V1 जो आपका क्या होगा? जहां पे 0 होगा. Plus, now what is the potential head? Because I am taking the reference line from the center line of the pipe, and the potential head, that is equal to plus 8. Right? This is equal to, what is your P2 at the, now this section number 2 I have taken at the free surface, जहां से पानी exit में free surface बाहर जाएगा, तो you can say the pressure of the water at the free to the atmosphere, P2 is taken as 0 here, so P2 is, that is also 0, plus the velocity at this section 2, that is, ये तो B2 square upon 2g ही रहेगा, this is B2 square upon 2g, और जो Z2 है आपका, what is Z2? That is, because we have taken the center line as a reference point, तो Z2 आपका क्या होगा? That is also equal to 0. You understand? Plus, अब आपके आगे losses आ गए. You understand? All the losses. तो losses हमें कैलकुलेट करने हैं आधा. You understand है? तो आप कह सकते हैं जो आपका इक्वेशन बना, इसको ये लगा के एक बना 8 is equal to
B2 square upon 2G plus losses राइट। तो अगर मैं लॉसेस में लिखूं तो ये देखिए, ये लॉसेस आएगा 0.5 इंटू V1 square upon 2G। दिस इज द लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप राइट, प्लस उसके बाद कौन सा लॉस है, मेजर लॉस होगा फ्रिक्शन लॉस फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 4FL B1 square upon 2GD plus. Now next is the sudden expansion of the pipe. This loss at this point, जहां से मेजर लॉस ये सडन, तो ये क्या होगा, B1 square B1 minus B2 whole square upon 2G right, B1 minus B2 square upon 2G and plus the loss at the exit of the pipe. The loss at the exit of the pipe, that is given as not exit of the pipe, the loss of this major loss होगा ना यहाँ पे, that is 4F into ये L1 था, this is L1, L2 B2 square upon 2GD right. So these are the equations. Now the problem is, हमें तो लॉसेस भी सारे कैलकुलेट करने हैं, यू अंडरस्टैंड दिस। हमें लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो B2 की वैल्यू चाहिए और एक हमें B1 की वैल्यू चाहिए, यू अंडरस्टैंड। हमारे पास ना B1 का वैल्यू है ना B2 का वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे हम, चलो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से रहने दीजिए राइट। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट B1 एंड B2, और अगर हमारा B1 अपॉन B2 निकल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम, हम लॉसेस वी कैन कैलकुलेट, यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें क्या करेंगे, B1 और B2 हमें निकालना है, इसको मिटा दीजिए। सेकंड, इसमें हम आपकी इक्वेशन यूज करेंगे, वी विल यूज द इक्वेशन तो फर्स्ट हमने बर्नौलीज इक्वेशन को यूज किया। अब सेकंड इसलिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमारी B1 और B2 की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करना है, और देखिए कैसे करेंगे हम। सेकंड जो स्टेप इसमें आएगा, अप्लाई कंटिन्यूटी, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आप अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपका आएगा A1 B1 दिस इज इक्वल टू A2 B2 राइट, दिस चार्ज इज सेम, A1 B1 दिस इज इक्वल टू A2 B2। तो जहां से हम क्या करेंगे, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे राइट। तो आप कह सकते हैं यहां से B1 किसके बराबर आएगा, B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 इंटू B2 राइट। देयरफॉर B1 A2 हमारा है π/4 इंटू D2 स्क्वायर। सो व्हाट इज योर D2, 0.3 होल स्क्वायर
व्हाट इज योर A1? द एरिया निकालो, पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर, दैट इज 0.15 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे, इंटू B2। J और J आपका कैंसिल हो जाएगा और B1 की वैल्यू आएगी, दैट इज 4B2। यू अंडरस्टैंड? B1 दिस इज इक्वल टू 4B2। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर B1 इज इक्वल टू 4B2, राइट? तो B1 की वैल्यू हमारी आ गई 4B2। जहां जहां भी आपको B1 मिलेगा वहां पे क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, राइट? तो B1 इज इक्वल टू 4B2, ये आप कर लीजिए। तो जहां से आपका पहले देख ली HI, राइट, क्या है 0.5, B1 इज इक्वल टू 4B2 ना, 16 इंटू B2 स्क्वायर अपॉन 2G, 0.5 16 B2 स्क्वायर अपॉन 2G, देन दिस इज इक्वल टू 8 B2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये कितना आ गया पहला HI, 8 B2 स्क्वायर अपॉन, राइट, 8 B2 स्क्वायर अपॉन 2G। इसी तरीके से HF1 कितना आएगा, HF1 है जिस वन, और अगर ये सारी वैल्यू हम इसमें B1 की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें B1 की जगह ये आ गया 4 इंटू F क्या है, व्हाट इज योर F, दैट इज 0.01, व्हाट इज योर L1, दैट इज 25, व्हाट इज योर B1 स्क्वायर, दिस इज 16 B2 स्क्वायर, राइट, B1 is 4B2, yes, 16 B2 square upon 2 into G into D। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये भी वैल्यू हमें HF1 जिसमें मिलेगी, ये HF1 एंड दिस इज इक्वल टू 106, ये कैलकुलेट कर ले, दिस वैल्यू इज 106.67, this is the HF1, 106.67 B2 square upon 2G, राइट, D1 हो गई, राइट, D1 यहां पे पुट कर ले 0.15, राइट। तो ये वैल्यू आपको HF1 की भी आपको वैल्यू आ गई, राइट। तो ये नोट करते जाएं इस राइट साइड के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि HIV आ गया आपके पास, कितना आ गया 8 B2 स्क्वायर अपॉन 2G, HF1 दिस इज इक्वल टू 106.67 B2 स्क्वायर अपॉन 2G, टू वैल्यू यू हैव गॉट। अब आप ये वैल्यू निकाल लें। अब उसके बाद क्या होगा, HE हमें फाइंड आउट करना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट लॉस ऑफ हेड इन द एक्सपेंशन दिस वन। तो इसमें हम पुट कर दिए, आपका है गया HE, दैट इज B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, राइट। So this is equal to B1 minus B1 की जगह क्या पुट करना है अपने 4B2 पुट करना है अपने
तो ये आपका आ गया 16v2 स्क्वायर, नहीं ऐसे करना सीधा, 4v2 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, एंड दिस इज इक्वल टू 9v2 स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। तो ये एच ई भी आपका आ गया 9v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच ई आप लिख लो, एच ई दिस इज इक्वल टू एच ई so HE that is 9v2 square upon 2g, you understand। अब ये भी अपने कैलकुलेट कर लिए। अब आ गई आइए इसमें 4f2, तो इसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आएगा, ये था आपका 4f into L2 major loss in the bigger diameter of the pipe, v2 square upon 2g d2, right, upon 2g d2, you understand। so substitute all the values here and you will get 4f 0.01, what is L2, that is 0.L2, that is 15 meter, d2 0.3 to 9.81 and 9.81 and d2 0.3. Four FL 4FL, ये आपका तो v2 स्क्वायर ही आएगा, 2g रहने दीजिए सभी में सेम, 2 इंटू जी इंटू 0.3, राइट, दिस इज v2 स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू, कितना आएगा ये HF2, दैट इज 2, तो HF2 that is 2 v2 square upon 2g, you understand। तो ये आपने वैल्यूज निकाल, इन टर्म्स ऑफ v2 आपने सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ v2 लिख ली, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये आपका इक्वेशन है, तो इसको आप क्या करें, सारी वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, दैट इज 8 प्लस v2 स्क्वायर पान 2g, तो ऐसा ही आएगा, प्लस एच आई क्या था 8 v2 स्क्वायर अपान 2g। अब इसके बाद ये वैल्यू HF1 प्लस 106.67, that is v2 square upon 2g, right। now the expansion, that is plus 9 v2 square upon 2g and plus 2 v2 square upon 2g, right, that is 2 v2 square upon 2g। तो इसको आप सॉल्व करें एंड यहां से आपको v2 स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो v2 स्क्वायर कितना आ गया, ये सब्स्टिट्यूटिंग ये सारी वैल्यू करें, इसको मिटा दीजिए।
तो इससे ये आपको बेनिफिट हुआ कि हमें लॉस निकालना कैसे निकालेंगे। ये सारा क्वेश्चन A to Z आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो 8 B2 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन ले लें। B2 स्क्वायर अपॉन 2G यू टेक कॉमन एंड यू गेट 1 प्लस 8 प्लस 106.67 plus 9 and plus 2, right? ये आ गया आपका, आ गया B2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 126.67, राइट। तो आपका आ गया ये 8, दिस इज इक्वल टू B2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 126.67। तो देयरफॉर जहाँ से आपको B2 का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लें एंड यू विल गेट द वेलोसिटी B2। दिस इज इक्वल टू 1.113 मीटर पर सेकेंड। So this is B2 1.113 meter per second. You understand? तो इस तरीके से आपने B2 वेलोसिटी निकाल लिया। तो नोट कर ले आप B2 कितना आ गया, ये जरूरी है आपको, 113 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर B1 किसके बराबर है, 4 इंटू B2। So 4 into B2, what is the value of B1 now? That is 4.452. This is 4 into B2. This is equal to 4.452 meter per second, right? अब आपको B1 और B2 की वैल्यू मिल गया। अब इससे आपका क्या होगा, सारे लॉसेस आप निकाल लेंगे। नाउ यू विल कैलकुलेट द लॉसेस। अब आ जाइए कि लॉसेस, क्योंकि हमें लॉसेस निकालने थे तभी तो हमारी TL और HGL लाइन बनेगी। तो अब लॉसेस निकालिए, देखिए तो इस तरीके से लॉसेस निकालेंगे हम। तो लॉसेस आप लिखते जाइएगा, पहला आ गया HI 0.5 B1 स्क्वायर अपॉन 2G, और ये अगर वैल्यू आप पुट करें 0.5, व्हाट इज योर B1, 4.452 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81। तो देयरफॉर HI कैलकुलेट करने के बाद you will get how much this is, 0.50 मीटर। तो लॉस एट द एंट्रेंस आ गया 0.50 मीटर। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द लॉस एट द एंट्रेंस। सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड। अब आ जाइए मेजर लॉस HF1। तो HF1 भी हमने वैल्यू पुट कर ले, जो आपका 4FL1 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2GD। तो वैल्यू पुट करने के बाद B1 की वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट द 6.73 मीटर। चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 4FL1 B1 स्क्वायर अपॉन 2GD1, and if you will put all the values here, that is 4 into 0.01, L1 कितना है, that is 25, B1 कितना हो गया, this is 4.452 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 9.81 and D1 well, this is 0.15 मीटर। सो ये वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट HF1, कैलकुलेट आप खुद करते जाइएगा, 6.73 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हाउ मच यू गेट, दैट इज
6.73 मीटर। सो HF1 ये नोट कर लीजिए यहाँ पे 6.73 मीटर, राइट। अब उसके बाद तीसरा लॉस आ गया HE, दैट इज B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। और जब आप B1 की वैल्यू पुट करें, B1 की वैल्यू पुट करें जो आपने निकाला है 1.113, सॉरी B1 की वैल्यू 4.452 माइनस 1.113 मीटर पर, और पुट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू 0.568। तो आप पुट कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे B1 कितना था 4.452 माइनस व्हाट इज योर B2 1.113 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G इंटू D D1, राइट, 2 इंटू G इंटू नॉट D1 है, राइट, 2 इंटू G, सो D1 कहाँ से लेंगे। तो ये वैल्यू आप पुट करें G इन 2.918 एंड यू विल गेट द वैल्यू, हाउ मच द वैल्यू यू विल गेट, दैट इज 0.568 मीटर। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन यू विल गेट HE, दैट इज 0.568 HE 0.568 मीटर, राइट, 0.568 मीटर। सो इस तरीके से मैंने सारे हेड्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए। यू अंडरस्टैंड दिस वाई यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो मैंने B2 और B1 की वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस, और जब B1 और B2 हमें मिल गया तो मैंने ये सारे हेड जो है वो सॉल्व कर लिए। HI का फार्मूला क्या था 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और इसको आप पुट करें तो यू विल गेट दिस लॉस ऑफ हेड। HI क्या है, दैट इज द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस, दिस इज 0.50 मीटर। इसी तरीके से अब आ जाइए मेजर लॉस के ऊपर एट द पाइप 1, दैट इज डिनोटेड बाई HF1 एंड दिस इज इक्वल टू 6.73 मीटर, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। इसी तरीके से HE दैट इज 0.56 मीटर, HF2 दिस 0.126 मीटर, HF2 दैट इज द मेजर लॉस at this point। HE the loss of the head at the expansion of the pipe वो निकाल लिया, और इसी तरीके से हमने वेलोसिटी काइनेटिक हेड वहाँ पे आउटलेट के ऊपर और काइनेटिक हेड हमने इनलेट के ऊपर वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट, क्योंकि मेन एम था मेरा कि वी हैव टू ड्रा द TEL एंड HGL एंड हाउ वी विल ड्रा इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now first we will draw total energy line। अब देखिए टोटल एनर्जी, हेड लॉसेस हमने सारे निकाल लिए, अब टोटल एनर्जी लाइन देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम। क्या है हमारा टोटल एनर्जी, फर्स्ट हम विल ड्रा टोटल एनर्जी लाइन, राइट। So point A is lying on the surface of this water। तो point A का तो हेड ऊपर है, it means that the energy line that will coincide on the free surface of the water। तो जहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, J का पका पॉइंट, राइट, you take this point। तो this point or this point both are same one, there is no difference in the point। So let us denote this point। अब जहां से फर्स्ट आ जाइए, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एंट्रेंस लॉस होगा, राइट, HI।
एंट्रेंस लॉस कितना था आपका 0.50 मीटर। तो मैं जहां से 0.50 मीटर एंट्रेंस लॉस है, तो मैं क्या करूंगा, जहां से एक पॉइंट ये वाला ले लूंगा, दिस पॉइंट, राइट। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये 0.50 मीटर हेड लॉस हो गया एंट्रेंस का। तो दिस पॉइंट आई हैव टेकन, let us say that this point is taken as B। तो ये आपका पॉइंट, ये अगर आपका A है एंड दिस पॉइंट इज B, तो मैं कहता हूं AB जो मैंने लिया एंट्रेंस लॉस दैट इज 0.5 मीटर। जहां पे आ गया, यू अंडरस्टैंड दिस, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट आई विल से दिस पॉइंट इज B। तो ए भी जहां पे आ गया 0.5 मीटर एंट्रेंस लॉस हुआ। तो हमारा जो हेड था वो हमारा कितना हो गया 0.5 मीटर। एंट्रेंस लॉस का हमारा हेड लॉस हुआ 0.5 मीटर, तो टोटल हेड से 0.5 मीटर लेस हो गया। यू अंडरस्टैंड दिस। अब उसके बाद आ जाइए HF1 6.73 मीटर। HF1 हमारा क्या है 6.73 मीटर। देखिए जहां तक दिस इज द पाइप एंड द मेजर लॉस इस पाइप का होगा दैट इज डिनोटेड बाय HF1। मैं कहता हूँ जहां पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो एंड एंट्रेंस ऑफ अ पाइप, और जहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा करो, राइट, जहां से लाइन। अब हमें देखिए कितना है 6.73 मीटर। तो चलो मैं कहता हूं कि जहां पे इतना, ये पॉइंट आप ले लें, दिस पॉइंट जहां पे आ गया, ये जो लास्ट था 6.73 मीटर, 6.73 मीटर, ये पॉइंट हमें मिला 6.73 मीटर ए बी, एंड दिस पॉइंट यू कैन से L. This point I will say this is L. तो आपने क्या करना है, एक ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट से करना है, और जो BL आपका होगा, राइट, सो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और BL दैट इज इक्वल टू, यू कैन से दिस इज योर L। तो BL से एक वर्टिकल लाइन डाउन करें कि कितना 6.73 मीटर जो हेड लॉस हुआ है, ये नीचे आएगा तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये आप जहां से इसको जहां से मिला दीजिए, ये आ गया एक पॉइंट, ड्रा दिस। अब उसके बाद कौन सा लॉस हुआ 0.568 मीटर। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ये वाला जहां पे 0.56 मीटर, तो ये लाइन यहाँ पे आप मिला दीजिए, क्योंकि ये आपका हेड लॉस आ गया 0.56 मीटर हेड लॉस एट द एक्सपेंशन ऑफ द पाइप। तो ये पॉइंट आएगा 0.56 मीटर। सपोज दिस पॉइंट यू कैन से, ये ऐसे करके लिख लो, ये पॉइंट है आपका 0.56 मीटर, 68 मीटर, राइट। ये आपका लॉस आ गया, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। इस तरीके से फिर आपकी टोटल एनर्जी लाइन फिर जहां पे डाउन चले जाएगी। अब आएगा HF2 दैट इज 0.126 मीटर। तो HF2 भी आपका क्या है 0.126 मीटर, जहां से लेके जहां तक लॉस होगा, राइट। तो कह सकते हैं कि आप इधर से ये आप इधर से आप ये ड्रा कर लीजिए, राइट। और इस पाइप के एंड में जाके जहां पे आप लॉस ले लें, ये पॉइंट आ गया, दैट इज कितना 0.126 मीटर। सो ये पॉइंट आपको मिल गया जहां पे ये जो आपका हेड लॉस जहां पे हुआ है दैट इज 0.126 मीटर, राइट।
और इस तरीके से इसको आप ज्वाइन कर लें, राइट। 0.126 मीटर। सो जे आपका हो गया, दिस इज योर एनर्जी लाइन। टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपके सारे लॉसेस आ गए। जहां से आपका एंट्रेंस लॉस, दिस इज द मेजर लॉस, फिर आपका एक्सपेंशन लॉस में फिर ये पाइप आपकी टोटल एनर्जी लाइन डाउन हुई। फिर आपका कौन सा लॉस आया, फिर आपका आ गया फ्रिक्शन लॉस, यू अंडरस्टैंड। फिर आपका हो गया फ्रिक्शन लॉस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द पॉइंट। तो आप जी आप कह सकते हैं दिस इज द काइनेटिक हेड एट द आउटलेट ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, यू अंडरस्टैंड। अब जो आपकी HGL होगी, यू अंडरस्टैंड, HGL जो होगी, आप जहां पे आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर, नो जस्ट सी हियर, जो हमारी HGL होगी, HGL जो ड्रा करेंगे हम, क्या करेंगे, जो हमारा हेड लॉस होगा जहां पे काइनेटिक हेड, जो एनर्जी टोटल एनर्जी में आप हमें क्या करेंगे, काइनेटिक हेड को माइनस करेंगे। तो काइनेटिक हेड है आपका V1 स्क्वायर पॉइंट 2G, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर V1 स्क्वायर पॉइंट 2G। तो ये क्या था आपका, दैट इज 1 मीटर। कितना हो गया ये, 1 मीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये B पॉइंट है तो 1 मीटर आप, और ये पॉइंट एक नीचे जहां से स्टार्ट होगी आपकी, यू अंडरस्टैंड, जहां से स्टार्ट होगी टोटल एनर्जी लाइन, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द काइनेटिक हेड। हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक हेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे एट दिस पॉइंट, बिकॉज वी आर ड्राइंग द HGL, और HGL दिस इज इक्वल टू द प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग द काइनेटिक, क्योंकि ये जो पॉइंट था आपका, जे पॉइंट, ये तो आपका टोटल एनर्जी था, दैट इज काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो जब हम इसमें 1 मीटर जहां से, क्योंकि ये तो एंट्रेंस लास्ट तो ऑलरेडी है ही है, उसके बाद 1 मीटर जहां से ले ले और ये हमें एक पॉइंट मिलेगा, यू अंडरस्टैंड। अब ये पॉइंट मिलेगा तो क्या करें, जहां पर तो लॉस क्या है, मेजर लॉस आपका यूनिफॉर्म है, तो जहां पे मेजर लॉस यूनिफॉर्म है तो क्या करें आप, एक डॉटेड लाइन जहां से स्टार्ट कर दे पैरेलल टू दिस, राइट, डॉटेड लाइन जहां तक आएगी, राइट। अब आ जाइए यहां पे, जहां तक जो था हमारा टोटल एनर्जी लाइन का ये पॉइंट था जहां पे, अब जहां से अगर हम आपका जे लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, हमारा जो काइनेटिक हेड लॉस, काइनेटिक हेड था एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, दैट इज 0.063, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहने का मतलब है कि ये हमारा पॉइंट आ जाएगा सेंटर लाइन ऑफ द पाइप में, राइट। सेंटर लाइन ऑफ द पाइप के ऊपर पॉइंट आएगा, तो सेंटर लाइन का पाइप के ऊपर पॉइंट आएगा, और जहां से हमें क्या होगा कि इसके आप पैरेलल थोड़ा सा डायग्राम गलत, क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर लाइन, तो इस तरीके से ये पैरेलल होगी, लेकिन ये इस तरीके से आएगी ये ऊपर, यू अंडरस्टैंड दिस। और ये जहां पे आके मिलेगी, तो जहां से आप इसको क्या करें, मिला दीजिए, ये इस तरीके से ये पॉइंट जहां पे मिल जाएगा ऊपर, बिकॉज द ड्यू टू द सडन, जहां पे क्या होगा, सडन एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, हमारा वेलोसिटी रिड्यूस होगा और प्रेशर हेड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए प्रेशर हेड जो जहां से है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, राइट। सो प्रेशर हेड विल कम लाइक दिस,
तो ये जहां पे आप देखिएगा एच जो आपकी है ये राइज किया, ये इस तरीके से, ये टोटल एनर्जी लाइन इस तरीके से आएगी। ये बेसिकली पैरेलल आनी चाहिए बिकॉज ये हमने स्केल से, वी हैव नॉट ड्रॉ द डायग्राम बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड हियर बिकॉज HGL that will always start from the center of this, क्योंकि because in this case we are ignoring the, जहां पे काइनेटिक हेड जो है वो 0 होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। और ये इस तरीके से देखिए, जहां से ये आपका एंट्रेंस लॉस आया, जहां से स्टार्ट हुआ 1 मीटर, आप नीचे ले गए। 1 मीटर का मतलब क्या है कि काइनेटिक हेड जो है एट द एंट्रेंस, वो हमने क्या किया, माइनस किया, तभी तो हमें फिजियोमेट्रिक हेड इस पॉइंट के ऊपर मिला। जहां से आप ये लाइन पैरेलल ड्रा करें, जहां से आप इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करें, और ये लाइन जो है आप देखेंगे अगर प्रॉपर आप पूरे पैरामीटर्स लेके स्केल के साथ आप इसको ड्रा करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जहां पे आके पॉइंट मिलेगा जब लाइन ड्रा करेंगे, तो जहां से आपका जो HGL है दैट विल राइज। और यही मैंने आपको बताया था दैट इन केस ऑफ द सडन एक्सपेंशन HGL विल राइज लाइक दिस। तो ये जो आपकी लाइन है, सो दिस लाइन, ये आपकी आ गई HGL, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका मेथड है ड्रा करने का। पहले आप टोटल एनर्जी लाइन को ड्रा करें, जितने भी लॉसेस हैं आप टोटल एनर्जी लाइन को देखेंगे, दैट विल ऑलवेज फॉल डाउन। टोटल एनर्जी लाइन ये आपकी फॉल नीचे करेगी, यू अंडरस्टैंड दिस, दैट विल ऑलवेज फॉल डाउन। दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन, आप कह सकते हैं ये इस तरीके से, राइट। दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन दैट विल फॉल डाउन लाइक दिस। ये काइनेटिक हेड है बट ये आपकी टोटल एनर्जी लाइन। अब जब अपने HGL ड्रा करना है तो HGL क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, हमें फिजियोमेट्रिक हेड लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप एंड काइनेटिक हेड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द TEL, टोटल एनर्जी लाइन से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो जब हम जहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मीटर, तो सपोज आई विल से आई विल गेट द पॉइंट हियर, जहां पे हमारा पॉइंट आ गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर थोड़ा और नीचे कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये अगर ले लिया तो ये सपोज करो मैं कहता हूं 1 मीटर ये है। ये स्केल के हिसाब से तो गलती होगा बट ये थोड़ा दिखाने के लिए, ये 1 मीटर आ गया जहां पे, राइट। और ये जो लाइन ड्रा करेंगे आप, ये लाइन ड्रा करेंगे, सपोज मैं कहता हूँ ये लाइन इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन आ गई, यू अंडरस्टैंड। ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये वाला, ये जहाँ पे देखिए, जहाँ से देखिए आपकी HGL इसको इस तरीके से ही मिला लिया हम सीधा ही। तो HGL आपकी जो है ये लाइन आपकी जो मैंने ब्लैक से ये जहाँ से आई, उसके बाद HGL राइज हुआ, और राइज होने के बाद फिर ये जहाँ पे सेंटर लाइन ऑफ द पाइप मिल गया, राइट। सो दिस इज योर HGL, दिस इज द मेथड, दिस इज द वे यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी हेड लॉसेज हैं यू हैव टू कैलकुलेट। और अगर आपको B1 B2 का वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशंस लगाइए वहाँ पे, और 2 पॉइंट आप ले लीजिए इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 प्लस लॉसेज करके। तो लॉसेज निकालने के लिए हमें पहले B1 और B2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशंस किया, B1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B2 फाइंड आउट की, और सभी में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। जो भी कैलकुलेशन था, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन था, वो आपको समझा दिया। यहाँ पे मेन चीज़ है कि HGL और TEL को कैसे हमने ड्रा करना है। HGL के केस में क्या होगा, जितने भी लॉसेज होंगे ये माइनस होते जाएंगे और HGL हमेशा आपकी फॉल डाउन करेगी। जब TL का केस लेंगे तो TL दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, बिकॉज इसमें आउटलेट के ऊपर जो आपका एनर्जी है काइनेटिक हेड होगा वो 0 होगा, और जो जहां से आप पॉइंट लेंगे आप वेलोसिटी हेड काइनेटिक हेड एट पॉइंट इसके ऊपर भी एंट्रेंस में निकालेंगे, तो इसमें भी वेलोसिटी हेड जो आपका पॉइंट होगा वो सपोज करो वेलोसिटी हेड पॉइंट आपका ये आ गया जहां पे B में, जहां से लेके जहां तक
जहाँ से लेके जहाँ तक, जहाँ से लेके जहाँ तक, ये आपका 1 मीटर पॉइंट, ये पॉइंट बी ले ले। इस तरीके से आपने पॉइंट को जहाँ पे लिया, माइनस किया वेलोसिटी हेड, और फिजियोमेट्रिक हेड हमें मिला, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रा करेंगे, बिकॉज यूनिफॉर्म पाइप है तो जहाँ से पैरेलल ड्रा करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी टी-एल लाइन जहाँ पे है, जहाँ सेंटर लाइन से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट जहाँ पे सपोज आई है, ये पॉइंट आपका के है, तो आई से के को आप ज्वाइन करें, और जहाँ से देखेंगे HGL आपका राइज किया। यू अंडरस्टैंड? तो आज ये मैं 2 प्रॉब्लम्स, यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइप और डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द पाइप, इसके बारे में ये 2 प्रॉब्लम्स आई वांट टू कैलकुलेट। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट, हाउ यू विल ड्रा द HGL एंड TL इन बोथ द केसेस। तो इसमें तो एक काफ़ी लंबी प्रॉब्लम्स थी, इसमें कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड, और उसको मैंने कैलकुलेट करके सीधा इसकी वैल्यूज़ लिख दिया यहाँ पे। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी थी, फार्मूले आपको बताए हैं, उसमें कैलकुलेट करने के बाद आप पहले आप हेड लॉसेस को कैलकुलेट करिए, एंड आफ्टर दैट देन यू विल ड्रॉ द TEL एंड HGL। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल टुडे, राइट। और ये आपका HGL और TEL का जो टॉपिक था, इसमें फ्लो थ्रू पाइप। नाउ दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस। अब इसके बाद हम पाइप थ्रू सीरीज, पाइप थ्रू पैरेलल्स, अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं उस केस में हमारी क्या क्या कंडीशंस होंगी। इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, or you can say if the main pipe that is branched into 2 different pipes। तो इस तरीके से अब ये इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा that pertains to that, right? So thank you very much, thank you।